Good morning, students. So we have to do exercise 2.4 today. Now, 2.4 third question we have discussed yesterday. Come to the fourth question. One of the two digit of a two-digit number is 3 times the other digit. One of the two digit of a two-digit number is 3 times the other digit. डिजिट वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि पहले आपने वंस प्लेस लेना है फिर टेंस प्लेस. यहाँ पर क्या कहते हैं? वन डिजिट इज 3 टाइम्स दी अदर. So we will write let digit at ones place is equal to x. Digit at tens place is equal to 3x. Always I have told you, whenever you get this digit questions, you have to find the original number and reverse number. Original number is 3x into 10 plus x into 1. 3x is at tens place, so it will get multiplied with n. 30x plus x, it is 31x. Who is whistling? Did anyone whistle? No? ऐसे लगा मुझे. रिवर्स नंबर 3x पहले 10 से मल्टीप्लाई हुआ है, अब 1 से होगा. और x पहले 10 से हुआ था, 1 से हुआ था, अब 10 से. It is 13x. What is the problem, boys? Am I cracking any joke? What is the thing which makes you laugh? Pulkit? मैम ना कर, थप्पड़ मुंह पे पड़ गया ना एक. रिवर्स नंबर ओरिजिनल नंबर निकाल लिया. इसके बाद देखो क्वेश्चन पे आ जाओ वापस. If you interchange the digit of this two-digit number and add the resulting number to the original number, you get 88. कहते हैं रिवर्स करके अगर जो भी आया हमारे पास उसको हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 88. So according to question, what it is? Reverse number plus original number is equal to 88. 44x is equal to 88. X is equal to 2. Therefore, digit at ones place is 2. ओरिजिनल नंबर बेटा क्या हो गया? देखो बोर्ड पे. ओरिजिनल नंबर पे x कौन सी प्लेस पे है? मतलब वंस टेंस. वंस पे x मतलब 2, टेंस पे 3x मतलब 6. And what is the reverse number? 26. This one was comparatively easy from the one which we did yesterday, but the method is same. Kindly note down.
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. Shobo's mother's present age is 6 times Shobo's present age. जो मदर की प्रेजेंट एज है वो शोभो से कितनी है? 6 टाइम्स. मान लो अगर शोभो 15 नहीं 5 की है तो मदर की एज कितनी है? 5 6 30. ठीक है. शोभो's एज 5 years from now will be 1/3 of his mother's present age. अगर 5 साल बाद की बात करें तो शोभो की एज कितनी होगी अपनी मदर से 1/3. तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमने प्रेजेंट एज लिखनी है. ठीक है. उसके बाद चेंज एज, फिर चेंज एज पे इक्वेशन बनाकर प्रेजेंट एज निकालते हैं. राइट डाउन. लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शोभो present age of Shobho is equal to X year. शोभो की मदर है और एक ही मदर की बात हो रही है तो सीधा मदर लिखेंगे. 5 टाइम्स है 6 टाइम्स. ठीक है. पांच साल बाद, आफ्टर 5 years from now means after 5 years. According to the question. Now what is the equation? Shobho's age 5 years from now. शोभो की एज कितनी है? x plus 5 will be. will be का मतलब equal to. will be 1/3 of his mother's present age. 1/3 मदर की एज क्या लेनी है इसमें? ना 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 ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो मदर की एज है वो कौन सी एज है? प्रेजेंट. दोनों की चेंज एज नहीं वो ले रहे. क्वेश्चन समझो. पांच साल बाद द एज ऑफ शोभो विल बी 1/3 of his mother's present age. You have to move according to the statement. After 5 years, what will be the age of Shobho? X plus 5. 5 years from now, Shobho's age will be 1/3 of his mother's present age. मदर की वो एज कौन सी लेनी है? प्रेजेंट. तो ये इक्वेशन बनेगी. समझ आ गई आपको? तो इसमें दोनों की चेंज एज लिखने की जरूरत नहीं है. आपको नहीं समझ आया? किसको नहीं समझ आया? 5 साल बाद जो शोभो की एज है that will be 1/3 of his mother present. तो मदर की एज कौन सी लेनी है? प्रेजेंट. x कितना आ गया? 5. What are their present ages? Therefore present age of Shobho 5 years. नोट करो. नोट करो.
Note down. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Mahuli village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. And they are not well, so I cannot. Some surrounding नहीं बोल. आपके करो सो जाओगे. The length and breadth of the plot at the ratio 11:4. At the rate of ₹100 per meter, it will cost the Vilayat Panchayat 75,000 to fence the plots. What are the dimensions of the plot? Write down. Length or breadth ratio में है. In this question, we are talking about fencing the plot, fencing the rectangular plot. It means we have to find the perimeter of the rectangular plot. सबसे पहले लिखो यहाँ पर बेटा आपको लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो गिवन है. रेशियो हटाकर x लिखोगे. राइट डाउन. लेट लेंथ length of plot is equal to 11x. यहां लिख लो रेक्टेंगुलर प्लॉट लिखो. ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 4x. ये किसमें है? मीटर में है. दिस इज द पेरीमीटर. आप लोग क्वेश्चन करते थे ना, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट. क्या करते थे उसमें? पेरीमीटर निकालते थे. पेरीमीटर को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, टोटल कॉस्ट आ जाता था, है ना. सुनो पहले मेरी बात. स्टॉप राइटिंग. 7, 6, 7 में ऐसे क्वेश्चंस करते थे. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट. यू यूज टू फाइंड द पेरीमीटर एंड देन यूज टू मल्टीप्लाई इट विद कॉस्ट. आपके पास कॉस्ट आ जाती थी, है ना. यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट दी हुई है कितनी? 75,000. हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है. और जो कॉस्ट दी है वो किस हिसाब से दी है कि 100 पर मीटर. अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 1 मीटर is ₹100. This is the perimeter of the plot. So cost of fencing 30x meter, 100 into 30x, that is 3000x meter. ये समझ आ गई? अब this is what? Sorry. This is the total cost. What is the total cost of fencing?
3000x. According to question, the total cost of fencing is given 75,000. 3000x is also the total cost. 75,000 is also the total cost as per the question. So both they are equal. नहीं समझ आई? आप क्वेश्चन समझना नहीं चाह रहे? इस रूम को मैंने फेंस करना है, ठीक है? मैंने चारों तरफ रस्सियां लगानी है दीवार पे. टोटल जो रस्सी है जो मैंने ली, मेरे लगे 500 रुपीज, ठीक है? I have to find what is the length and what is the breadth if the ratio is given. तो मैंने क्या किया, पेरीमीटर निकाला. 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब, 10 रुपीज पर मीटर के हिसाब से हमारी रस्सी है. तो टोटल मान लो लगा 50x पेरीमीटर आया. 1 मीटर के लिए 10 रुपीज की रस्सी आती है. 50x मीटर के लिए कितने की रस्सी आएगी? 50x into 10. That is what? That is the total cost. And that total cost is equal to the money which I have spent, that is rupees 500. समझ आ गई बात? इसी तरह से ये पेरीमीटर है. 1 मीटर को फेंस करने के लिए 100 रुपीज लगते हैं. पूरे प्लॉट को फेंस करने के लिए हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग कितने लगे? 3000x. बट ये x अननोन है, इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल प्लॉट को फेंस करने के लिए कितनी मनी लगी? 75,000. यहां से हम x निकालेंगे. Therefore, length is breadth is 7 क्वेश्चन मंडे को करेंगे. अभी नेक्स्ट आगे चलो. NAS का टेस्ट कंपल्सरी है, यू नो और नॉट? जो नहीं दे रहे उनकी एब्सेंट लग रही है बेटा. एंड इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू. सो टुमारो अगेन यू हैव NAS टेस्ट एट 2 o'clock. यू विल बी गेटिंग, गूगल फॉर्म पे आएगा. है क्या? 7 क्वेश्चंस हैं, ठीक है? और 7 एकेडमिक, 3 नॉन एकेडमिक. 10 क्वेश्चन है. फटाफट से क्लिक करके और उसको अटेम्प्ट करके मुझे मैथ्स के ग्रुप में अपने आंसर का स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है? पर्सनली मत भेजना, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है. फिर देखना, ग्रुप में भेजो, सारे इकट्ठे आ जाते हैं, मैं सारे इकट्ठे मार्क्स नोट कर लेती हूँ. 2 बजे. दस क्वेश्चन है. कितना टाइम लेगी तू? पता नहीं, टाइम लिमिट आधा घंटा हो गया. आई डोंट नो. सारा दिन ओपन होता है? मैम ने बोला है फिर ओपन होगा. पता नहीं टाइम लिमिट. तो तुम लोग 2 बजे कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट टू नेक्स्ट बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन तो कराना ना. 7 मंडे करेंगे. 8th क्वेश्चन देखो. Half of a herd of a deer are grazing in the field. जितनी भी डियर्स हैं उसमें से आधी जो डियर है they are grazing in the field and 3/4 of how you are sitting like a monkey? You are sitting like an old person? थक गए हो? And 3/4 of the remaining are playing nearby.
The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. जितनी भी deer है, herd मतलब group of herds. ठीक है. Half of the deer are grazing the field. जो बच गई उसमें से जो 3/4 हैं वो क्या कर रही हैं? प्लेइंग, इधर उधर हैं. उनमें से जो बच गई वो कितनी है? 9 that are drinking water. So we have to find the total number of deer. Write down. Let the total number of deer is equal to x. Number of deer grazing the field, that is half of x, x by 2. कितनी बच गई? टोटल x है. x में से जो ग्रेस कर रही है माइनस किया, कितना आया? x minus x by 1 minus 1 by 2, 1 minus half. एक में से आधा गया, आधा बचा. x में से x by 2 बचा गया तो x by 2 ही बचा. कैसे? जैसे एलसीएम लेके देख लो जाए. 2 एलसीएम 1 के टेबल में 2 2 पे 2x minus x, सीधा भी x by 2 लिख सकते हो. If total are x by 2 are grazing the field, how many are remaining? X by 2. Now number of deer playing. Anyone can tell me what to write in number of deer playing? 3 by 4 of, yes, 3 by 4 of the remaining. 3 by 4 of remaining. Remaining कितनी है? ये थी जो ग्रेस कर रही हैं. ये कितनी आ गई? जो प्ले कर रही हैं. वहां करते जाओ बेटा, बातें मैंने रोकना नहीं है. करो करो फुल ऑन. जितनी देर दिल में बातें ना सारी आज ही खत्म करके जाना क्लास में. और ये कितनी है जो पानी पी रही? According to the equation, look here on the board. X by 2 are grazing the field. 3x by 8 are playing in the field. 9 are drinking the water. And these are total equal to, ये टोटल किसके बराबर है? ये सारी टोटल है ना, जिनमें से कुछ ग्रेस कर रही हैं, कुछ पानी पी रही हैं, कुछ खेल रही हैं. ये टोटल नंबर ऑफ डियर्स है. और टोटल नंबर ऑफ डियर्स हमने लिया है किसके बराबर है? x. So we have got the equation. Now we will solve it. We will take LCM on the left hand side. 8 is the LCM. 2 के टेबल में 8 किस पे आता है? 4 पे. It is 4x plus 3x plus 72 is equal to x. 7x plus 72 is equal to 8x. We have to find the number of deer in the herd. Therefore, total number of
deer in herd is 72. Note down quickly. What's your name? पता नहीं, इसका नाम है पता नहीं, ठीक है। आज के बाद I'll call you पता नहीं। Done. Next question number 9. A grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. Write down. Let the present age of granddaughter is equal to X years. Let the present age, that this I will not be writing. Let the present age of granddaughter is equal to X years. लिख लिया है? नेक्स्ट लाइन में लिखिए प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज इक्वल टू 10x। ये हो गई ग्रैंड डॉटर की, ये ग्रैंडफादर की कितनी? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, साथ में वो कहते हैं कि जो ग्रैंडफादर है वो ग्रैंड डॉटर से 54 इयर्स बड़ा है। मान लो आप हो अभी 10 इयर्स के, ठीक है। आपके जो ग्रैंडफादर हैं वो आपसे 60 इयर्स बड़े हैं सपोज, तो कितने के हुए वो? 70। मतलब कैसे किया? या इसको ऐसे, अब हमारे क्वेश्चन में वो कहते हैं कि ग्रैंडफादर इज 54 इयर्स ओल्डर देन हर। अब अगर ऐसे दिया हो कि आपके ग्रैंडफादर आपसे 54 इयर्स बड़े हैं, तो इसका मतलब आपकी एज और आपके ग्रैंडफादर की एज को मिलाकर 50 वो आएगा। आप अच्छा, ये बहुत बड़ी एग्जांपल होगी, छोड़ो। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 2 ब्रदर्स एंड सिस्टर, ठीक है। यू आर 10 इयर्स ओल्ड, ठीक है। आपका जो ब्रदर है ही इज 7 इयर्स ओल्डर देन यू, ही इज 7 इयर्स ओल्डर देन यू, मतलब और वो कितने साल का हुआ? 17। तो इसका मतलब आपके और आपके ब्रदर की जो एज x प्लस 10 प्लस 7 करके 17 आया। इसी तरह से यहाँ पर आपकी एज में अगर 54 ऐड करेंगे तो आपके ग्रैंडफादर की एज आएगी। ऑब्वियसली ही इज 54 इयर्स ग्रेटर देन यू और उनकी एज अभी कितनी है? 10x। अगर आपकी एज में उनकी जो जितने वो बड़े हैं उसको ऐड कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू द ग्रैंडफादर्स एज। 54 is equal to 10x minus x, 54 is equal to 9x, x कितना आ गया? 6। हमें क्या निकालना है? देयर प्रेजेंट एजेस। देयरफॉर, ये आपने गुरनूर पहले के क्यों है कि अभी कर रहे हो?
दिस इज गोल्ड रिंग, वो गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड रिंग नहीं पहननी है स्कूल में। प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर 6 years, प्रेजेंट एज ऑफ ग्रैंडफादर इज। इवन क्वेश्चंस होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और 10 मंडे को करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू विद 2.5 देन, ये नोट कर लो। Okay, all right students, see you on Monday, take care.